Hello students, very good morning. All of you are warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes from ML Convent Group of Schools. Students, from today onwards, we are going to start our your second chapter in Hornbill. That is, we are not afraid to die if we all are together. As we all know that the chapter is written by Gordon Cook and Alan East. So before we start talking about the chapter, we are supposed to talk about the authors first of all. Since the chapter is written by two authors combinedly, so let us talk about one by one. uh, First of all, let us talk about Mr. Gordon Cook. Gordon Cook was born on December 3rd, 1978 in Toronto. Is a two-time Canadian Olympic sailor. He sails for the Royal Canadian Yacht Club. He is the son of Stephen Cook and Linda Cook. He had a great interest in writing stories too. Cook is a graduate of the engineering physics program at Queen's University. At Queen's University, he also met his 2008 Olympic uh, team partner Ben Rimoka, where they were members of the university sailing team. Cook and Rimoker became the first Canadians to sail a 49er in an Olympic regatta at the 2008 Beijing Olympics, where they finished 14th. In 2009, Cook partnered up with West Vancouver sailor Hunter Loudon, and the two campaigned together for the 2012 Olympic Games. While Cook and Loudon did not make the first round of qualifications at the 2011 ISF Worlds in December 2011, they did qualify at the 2012 49 Air Worlds in Croatia, making Cook the only person ever to represent Canada twice in the 49 Air class at the Olympic Games. Cook and Loudon came third in the first race of the 49 Air class in the 2012 Olympic Games, but did not qualify for the medal race. So this was something about your Gordon Cook. Now let us talk about Alan East. So Alan East admitted to the role of solicitors in 2003 and has gained extensive experience as a litigator, manager, and legal trainer. In 2004, he co-founded and managed a niche legal practice specializing in criminal litigation and prison law, gaining higher rights of audience in criminal proceedings and working as a duty solicitor. In 2007, he joined the Crown Prosecution Service as a senior Crown prosecutor. In 2010, Allen joined Coventry University as a senior lecturer in law and worked passionately to support access to justice, working closely with the Central England Law Centre. In 2016, he became a director of a Coventry Independent Advice Service. Finally, Allen is a co-founder of a multi-academy trust, Central Academies Trust, which has as its aim improving standards in secondary education. So, students, this was something about the authors. They were Gordon Cook and Alan East. Now,
we are supposed to talk about the story. Story, let us talk about the introduction. The Europeans, you must admit, are enterprising and adventure loving. हम सभी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जो यूरोपियंस होते हैं वो इंटरप्राइजिंग होते हैं और एडवेंचर लविंग होते हैं. Their every qualities enabled these every qualities enabled them to sail around the world. उनकी जो यही क्वालिटीज़ है कि वो एडवेंचर्स करना और इंटरप्राइज करने के बहुत बड़े शौकीन होते हैं. इन्हीं क्वालिटीज़ के कारण वो पूरी दुनिया की सेलिंग पे निकलते हैं, नए नए रूट्स डिस्कवर करते हैं, नए लैंड्स खोजते हैं एंड अल्टीमेटली कॉलोनाइज देम, और अल्टीमेटली अपने आप को अपने देश के साथ साथ किसी और प्लेस पे कॉलोनाइज कर लेते हैं. A few countries ruled over nearly half to the world. हम सब जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में या यूरोपियन कंट्रीज की कुछ एक कंट्रीज ऐसी हुई हैं जो कि लगभग आधी दुनिया पे जो है रूल की हैं. Closeness to sea and then better experiences of tempests or storms made them strong enough to challenge death. हम सभी जानते हैं कि वो जो है सी से उनकी नज़दीकी है और टेम्पेस्ट और स्टॉर्म्स से उनसे उन्होंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंसेस लिए हुए हैं. और इससे क्या हुआ है कि वो डेथ को चैलेंज करने में अपने आप में कंपैरेटिवली काफ़ी स्ट्रांग हो गया. अगर हम इस स्टोरी की बात करें, अभी तक हम लोगों ने जो बात किया उसमें कुछ बातें तो हमारे सामने आ गई कि ये स्टोरी भी कहीं न कहीं से एडवेंचर पर बेस्ड है, कुछ लोगों के इंटरप्राइज पर बेस्ड है. वी आर नॉट एबल टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. एज द टाइटल सजेस्ट इज एन एडवेंचरस ऑर्डियल एट सी. ये जैसा कि इसका टाइटल सजेस्ट करता है, ये समुद्र में लोगों की जो एडवेंचरस ऑर्डियल है इन द सी उसको दिखाता है. हम सभी लोग ढेर सारे लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग जगहों पे अपने एडवेंचरस ऑर्डियल को शो ऑफ करते हैं. जैसे कुछ लोग स्पोर्ट्स में, तो कुछ लोग माउंटेनियरिंग करते हैं, कुछ लोग स्कीइंग करते हैं. अलग अलग तरह के लोगों के अंदर या अलग अलग लोगों में अलग अलग और एडवेंचरस ऑर्डियल हैं. ये जो आपका अकाउंट है, इट इज़ एन अकाउंट ऑफ द नरेटर्स ग्रिट एंड करेज. ये जो अकाउंट है ये नरेटर की ग्रिट और करेज को दिखाता है कि किस प्रकार से अपनी ग्रिट और करेज के द्वारा ही फेसेस एडवर्सिटीज, स्पेशली व्हेन वन एंजॉयज द फेथ ऑफ सपोर्ट ऑफ हिज किन एंड किड. एडवर्सिटीज को फेस करना करेज के साथ, दैट्स नादर मैटर. लेकिन अगर व्यक्ति उन एडवर्सिटीज को अपने किथ और किन, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ करता है, उनके फुल सपोर्ट के साथ करता है, उनका फेथ आपके ऊपर होता है, और तब जब आप वो काम करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होता है, इट हैज़ अ डिफरेंट इम्पैक्ट ओवर द ऑडियंस. दिस लेसन जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ये एक हार्ट रेंडिंग अकाउंट है that has been written by Gordon Cook and Alan East. ये हार्ट-रेंडिंग अकाउंट है एक 37-year-old बिजनेसमैन का. This heart-rending account is an account of a 37-year-old businessman who is the narrator of the story, जो कि इस कहानी का नरेटर है. उसकी वाइफ
जिसका नाम मैरी है, और एंड द 2 चिल्ड्रन, जोनाथन हु इज 6 years old एंड सुजेन हु इज 7 years old। उसके 2 बच्चे, पहला बेटा है जोनाथन जो कि 6 साल का है, एंड हिज डॉटर सुजेन जो कि 7 साल की है। इट एक्सप्लेन्स हाउ द फैमिली हैड अ क्लोज इनकाउंटर विद डेथ ड्यूरिंग देयर वॉयज। ये जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन करती है कि ये जो फैमिली है, इसमें नरेटर है, उसकी वाइफ मैरी और 2 बच्चे जोनाथन एंड सुजैन। ये दोनों बच्चे, ये पूरी फैमिली एक वोयाज पे जाती है, और उस वोयाज के दौरान वो किस प्रकार से, हाउ दे इनकाउंटर डेथ, इसका बहुत ही सुंदर डिपिक्शन किया गया है इन दिस स्टोरी। ही एंड हिज वाइफ both dream of a voyage around the world on their trip on their ship Wavewalker, which is a 23-meter long 30-ton wooden hull just like that of the famous Captain James Cook। So ये जो है as I'm telling you, वो और उसकी वाइफ मैरी दोनों का बहुत ही पुराना ड्रीम होता है कि वो दोनों जिस रूट पे कैप्टन जेम्स कुक ने वोयाज किया था और पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाया था, इनका भी ड्रीम था कि ये भी पूरी ऑल अराउंड द वर्ल्ड के वोयाज पे जाएंगे। एंड फॉर दैट सेक उन लोगों ने अपनी एक शिप डिज़ाइन किया था। द नेम ऑफ द शिप वॉज वेववॉकर। उस वेववॉकर नामक शिप पे, जो कि 23 मीटर लॉन्ग थी और इसमें 30 टन के आसपास लकड़ी जो है यूज किया गया था, उस शिप के द्वारा ये लोग प्लान करते हैं एक अराउंड द वर्ल्ड वोयाज पे जाने का। द होल फैमिली स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड इन जुलाई 1976। जुलाई 1976 में इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से ये लोग अपनी जर्नी शुरू करते हैं। इनिशियल फेज ऑफ द 3-year लॉन्ग जर्नी वॉज फ्रॉम अफ्रीका टू केप टाउन। फ्रॉम अफ्रीका टू केप टाउन इनकी जो है इनिशियल फेज था वो 3 साल का था, जो कि इंग्लैंड से शुरू होके अफ्रीका के केप टाउन तक पहुंचना था। एंड दिस फेज वॉज प्लेजेंट। ये फेज बहुत ही प्लेजेंट रहा। इनका शुरुआती 3 साल का जो दौर था वो वॉज उसका जो इनिशियल फेज था, जो कि इंग्लैंड से शुरू होके अफ्रीका के केप टाउन तक पहुंचता था, वो प्लेजेंट रहा। और उसके बाद एज सुन एज दे हेडेड टूवर्ड्स ईस्ट इन द इंडियन ओशियन, लेकिन उसके बाद जैसे ये लोग ईस्ट की तरफ टर्न हुए, जैसे ये इंडियन ओशियन में पहुंचते हैं एलॉन्ग विथ, और वहाँ पे केप टाउन में ये लोग 2 क्रू मैन को भी हायर करते हैं जिनका नाम लैरी विजल और लैरी था और हर्व था। ये 2 क्रू मैन के साथ ये लोग ईस्ट में हेड करते हैं इन द इंडियन ओशियन। जैसे ये उधर ईस्ट में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड गिगैंटिक वेव्स हिट देम एंड देयर सर्वाइवल बिकेम अ क्वेश्चन। इनके सामने स्ट्रॉन्ग और गिगैंटिक वेव्स इनको हिट करने लगी और वहाँ पे सर्वाइवल एक क्वेश्चन बन गया। Their boat was caught in rough seas and was badly damaged by gigantic waves। इनकी जो नाव थी वो रफ सीज के घेरे में आ गई और पूरी तरीके से गिगेंटिक वेव्स ने उनकी शिप को डैमेज कर दिया। द फैमिली वॉज बैडली ब्रूज्ड। पूरा परिवार बुरी तरीके से ब्रूज्ड हुआ। स्टिल दे केप्ट देयर करेज फॉर दे फाउंड देयर स्ट्रेंथ इन देयर टुगेदरनेस। अगर उनके अंदर टुगेदरनेस ना होता, या हम ये कहें कि अगर नैरेटर अपनी पूरी फैमिली के साथ ना गया होता
अगर फैमिली का फेथ की सबका सपोर्ट ना मिलता तो शायद वो अपने जो है हिम्मत को छोड़ दिया होता और वो लोग सरवाइव ना कर पाते। लेकिन इनकी फैमिली ने का पूरा फेथ था नरेटर के ऊपर, और उस फेथ को पूरा करने, इस फेथ ने इसको और करेज दिया और स्ट्रेंथ दिया, और उस टुगेदरनेस के साथ नरेटर ने जो है सारे चैलेंजेस को फेस किया। द स्टोरी टेल्स अस अबाउट हाउ दे फॉट ईच डे। ये जो कहानी है आप उसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उन लोगों ने पूरी फैमिली ने हर दिन स्ट्रॉन्ग वेव्स से फाइट किए। ईच डे हाउ दे सर्वाइव्ड टिल द एंड, और किस प्रकार से बाय द एंड ये लोग सर्वाइव किए। द लेसन इज अ ट्रिटाइज ऑन करेज एंड वैलर। ये जो लेसन है एक ट्रिटाइज है करेज और वैलर पे। इफ वन कीप्स वंस माइंड calm in times of adversities and maintains faith and conviction in one's own strength, even God seems to stand by the side of such valiant and brave people. अगर कोई व्यक्ति एडवर्सिटीज के समय में शांत रहे और शांति के साथ अपने फेथ को मेंटेन किए रहे, अपनी खुद की स्ट्रेंथ पे जो है कन्विक्शन बनाए रखे, तो ऐसा लगता है कि ईश्वर खुद उनके बगल में ऐसे वैलियंट और ब्रेव पीपल के बगल में आके खड़े होता है। गॉड इटसेल्फ कम्स टू सपोर्ट और गिव्स अ मोरल बोस्टिंग टू सच वैलियंट एंड brave people. Students, in this way I have given an overview of the story. Let's start the chapter. Please open your book, page number 13. We are not afraid to die if we can all be together, by Gordon Cook and Alan East. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. So, the narrator, who is a 37-year-old businessman, along with his wife Mary and 2 children, Jonathan, age 6, and Suzanne, age 7, went on a voyage on their ship in July 1976. जुलाई 1976 में जो नरेटर है, जो कि एक 37-year-old बिजनेसमैन है, वो अपनी वाइफ मैरी, 2 बच्चे जोनाथन जो कि बेटा है 6 साल का, और सुजैन जिसको कि इस चैप्टर में सू के नाम से भी आप पढ़ेंगे, जो कि 7 साल की है। ये सब जो है एक राउंड द वर्ल्ड वोयाज पे निकलते। दे स्टार्टेड फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। इनकी ये अपनी जर्नी प्लाईमाउथ इंग्लैंड से शुरू करते। दे वांटेड टू कंप्लीट द सी ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड just like the one that had been completed 200 years ago by the famous Captain James Cook, जो कि इनकी जो राउंड द वर्ल्ड जो जर्नी है, वोयाज है, वो एकदम सेम रूट पे है जैसा कि कैप्टन जेम्स कुक ने 200 years ago पूरा किया था। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. So, narrator and his wife spent 16 years
improving their seafaring skills. ये एज आई टोल्ड यू, ये जो है जो ड्रीम था कि पूरी दुनिया का जो है वॉयाज लेंगे, ये लोग ट्रिप पे जाएंगे और कैप्टन जेम्स कुक को डुप्लीकेट करेंगे। ये दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों का ड्रीम था और इस पर्पज को, इस ड्रीम को टू फुलफिल देयर ड्रीम दे हैड मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट। पता है, इस दौरान जब से इन दोनों का ड्रीम बना है, ये अपने लेजर टाइम को भूल गए हैं। As soon as they used to get free time, they used to go on expertising or honing their seafaring skills. जब भी टाइम मिला पिछले 16 ईयर्स में, ये लोग अपनी सी फेयरिंग स्किल्स को होन करने में, उसको शार्पन करने में, उसको अच्छा करने में लगा दिया। बट हम जानते हैं कि ये इंग्लैंड के आसपास के थे, तो ये ब्रिटिश वाटर्स में ही अपनी जो है प्रैक्टिस किया करते थे। आवर बोट वेब वॉकर, इनकी जो बोट थी, द नेम ऑफ दियर बोट वाज वेब वॉकर। इनकी जो बोट थी उसका नाम था वेब वॉकर। अ 23 मीटर 30 ton wooden hull beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. इन्होंने अपनी जो है खुद की अपनी आवश्यकता के मुताबिक एक शिप, एक बोट डिजाइन किया था जो कि 23 मीटर लंबी थी और इसको बनाने में लगभग 30 टन वुड यूज हुआ था। एंड इन दिस वे कंप्लीटली ब्यूटिफाई किया था इन लोगों ने अपनी इस शिप को प्रोफेशनली। जो जैसा इनका पर्पस था, इस पर्पस के मुताबिक परफेक्ट वे में उन्होंने अपने इस शिप को डिजाइन किया था। महीनों, they had spent many months to fit it out, इसको फिट करने में, टेस्ट करने में। इवन ब्रिटिश वाटर्स में जो रफेस्ट वेदर थे, उन रफेस्ट वेदर में उन्होंने टेस्ट किया था अपनी इस शिप को, और टेस्ट करने के बाद एक परफेक्ट शिप बनाए थे कि किसी भी प्रकार का, कितनी भी स्ट्रॉन्ग वेव्स क्यों ना आ जाए, इनकी शिप सारी वेव्स को फेस कर लेगी। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3-year 105,000 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. इनकी जो 3 साल की प्लान जर्नी थी, they had planned their journey of the 3 years. इनकी जो पूरी जर्नी थी वो 3 साल के लिए प्लान थी। उसका जो इनिशियल फेज था, 3 साल की जर्नी जो कि लगभग 1,05,000 किलोमीटर्स का वोयाज, दैट वॉज गोइंग टू टेक 3 years, उसका जो फर्स्ट फेज था, फर्स्ट लेग था, इनिशियल फेज था, वो प्लेजेंटली बीत गया। दैट टुक प्लेस एंड दे सेल डाउन टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। और ये इंग्लैंड से निकल के अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट से होते हुए इसके साउदर्न कोस्ट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट केप टाउन तक पहुंच गया। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट we took on 2 crewmen, American Larry Wiesel and Swiss Herb Sizzler, and from there, from Cape Town, they appointed 2 crewmen. One was an American whose name was Larry Wiesel, and another was a Swiss whose name was Herb Sizzler. वहाँ पे अब चूंकि अभी तक तो ये
नॉर्थ से साउथ की ओर आ रहे थे। केप टाउन अफ्रीका का साउदर्न मोस्ट टिप है और वहां से इनको ईस्ट की ओर मुड़ना था। अब इनकी जर्नी इंडियन ओशियन में शुरू होने वाली थी। एंड वी नो इट वेरी वेल दैट इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज। हम सभी जानते हैं कि इंडियन ओशियन यहाँ पे अटलांटिक ओशियन वाली या पैसिफिक ओशियन वाली कॉमनेस नहीं मिलने वाली, इनको सब कुछ स्मूथनेस नहीं मिलने वाली, क्योंकि अब शुरू हो रहा था इंडियन ओशियन। और एंड वी ऑल नो इट वेरी वेल दैट इंडियन ओशियन इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज। दैट इज वाई दे यूज देयर माइंड। नैरेटर को मालूम चल गया था कि इंडियन ओशियन के रफ वेदर को वो अकेले फेस नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई ही अपॉइंटेड 2 crewmen. One was an American whose name was Larry Vigil and another was a Swiss whose name was Harv Sizzler. और इनको अपॉइंट करके ये लोग इंडियन ओशियन में ईस्ट की ओर हेड करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? What challenges these voyagers had to face, what adversities, what atrocities they are going to face in their voyage. To find out the answers of these questions, we are supposed to wait for the next class. By then, thank you. Have a nice day.